اسلامک اسٹیٹس کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں طالوت اور جالوت کے واقعے کا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی ناشکری کی ایک اور داستان بیان کی ہے جس کا سورہ بقرہ میں تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ممکن ہے تم وہ نہ کر سکو، مگر یہود کا جواب تھا کہ ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا، لہٰذا ہم جہاد کیوں نہ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم ربی کے تحت حضرت طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا، تو وہ اپنے قول سے پھر گئے کیونکہ طالوت ان میں سے نہیں تھے اور کسی مالدار گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہود کا رویہ کیسا تھا یہ جاننے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نبی تھے جن سے بادشاہ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کچھ بزرگوں نے یوشع بن نون کا نام لیا ہے، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریباً ایک ہی ہے اور یہ واقعہ بہت بعد کا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام میں قریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ ان کے مطابق یہ جناب شمویل یا شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد یہود پھر سرکشی پر اتر آئے تو باری تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، حالانکہ ان پر بڑی تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے تھے۔ انہیں تورات اور تابوت سکینہ کی برکت کے باعث غلبہ حاصل تھا، مگر باری تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں چھین لی، جبکہ نبیوں کی آمد کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ لادی کے جس خاندان میں نبی پیدا ہوتے تھے اس کے سب افراد جنگوں وغیرہ میں کام آ گئے۔ ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وقت آنے پر اسے نبوت عطا کر دی گئی، اور یہی جناب شمعون علیہ السلام تھے جن سے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کے ساتھ ہی جہاد بھی فرض کر دیا گیا۔ اس پر یہود بہت سٹ پٹائے۔ جب انہیں جہاد میں بادشاہ کا ساتھ دینے کے لیے کہا گیا تو اکثریت نے منہ پھیر لیا۔ محض چند لوگ تھے جو جہاد پر آمادہ ہوئے۔ طالوت ایک مفلس شخص تھا، کسی شاہی خاندان میں سے نہیں تھے، نہ ہی مالدار گھرانے سے تھے۔ سب سے بڑی بات کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی نہ تھا۔ انہی وجوہات پر یہود نے بادشاہت پر اپنا حق جتایا تو نبی شمعون علیہ السلام کا جواب تھا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ حکم ربی ہے۔ یہ عالم ہیں، طاقتور ہیں اور فنون حرب سے بھی پوری طرح آگاہ ہیں۔ قرآن کے مطابق نبی علیہ السلام نے انہیں طالوت کی بادشاہت کی علامتیں بتائیں کہ تمہیں کھویا ہوا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ یہ تابوت کیسا تھا اس کے بارے میں بھی کئی ایک روایات موجود ہیں کہ یہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے دل دھوئے جاتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ علیہ السلام نے اس میں تورات کی تختیاں رکھ دی۔ کچھ لوگوں نے اس سے مختلف شکل بیان کی ہے، تاہم جو بھی صورت ہو یہ ایک مقدس چیز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کفار نے یہود پر غلبہ حاصل کیا تو وہ ان سے یہ تابوت چھین کر لے گئے اور اسے اپنے بت کے نیچے رکھ دیا، مگر بار بار کی کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہ ہوئے اور تابوت بت کے اوپر آ جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طالوت بادشاہ بنے تو فرشتے تابوت کو زمین اور آسمان کے درمیان اٹھائے ہوئے لائے اور جناب طالوت کو پیش کر دیا۔
इस हवाले से और रिवायात भी हैं, मगर हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुकाबले में उनकी अहमियत नहीं है। ताबूत की वापसी के बाद यहूद को यकीन आ गया कि शमून अलैहिस्सलाम वाकई नबी हैं और तालूत बादशाह हैं। कहा जाता है कि जनाब शमून अलैहिस्सलाम ने भी अपनी नबूवत और तालूत की बादशाहत की यही दलील दी थी कि ताबूत फरिश्ते लेकर आएंगे। मज़कूरा अमर तस्लीम कर लेने के बाद ये लोग 88,000 की तादाद में जहाद के लिए तालूत के साथ हो गए। रास्ते में उर्दन और फलस्तीन के दरमियान अल शरिया नाम की एक नहर थी। जनाब तालूत ने उन्हें खबरदार किया कि इस नहर का पानी न पिया जाए, मगर उन्होंने परवाह न की और चंद के सिवा तमाम ने पेट भर कर पानी पिया तो वो जहाद के काबिल ही न रहे। कहा गया कि 80,000 में से सिर्फ 4,000 ऐसे थे जिन्होंने बादशाह के हुक्म की तामील की थी। किस्सा यूं है कि नहर पार करके जब दुश्मन के लश्कर पर नजर पड़ी तो पानी पीने वालों की बुज़दिली सामने आ गई और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ताहम मौला करीम ने तालूत के मुट्ठी भर लश्कर को दुश्मन पर फतह अता कर दी। जिस लश्कर पर फतह अता की गई वो जालूत का था। कुरान इस बारे में बयान करता है कि जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ए परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को हरा दिया। जालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलिकत, हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल व करम करने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 250-251। इस सारे मामले में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या किरदार है, जबकि बादशाह तालूत और नबी हजरत शमून अलैहिस्सलाम थे। फिर बादशाहत और नबूवत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में किस तरह आ गई। रवायात में है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के लश्कर के सपसालार थे। उस लड़ाई में उनके मुट्ठी भर लश्कर का जालूत के टडी दिल लश्कर से मुकाबला था। 80 में से 76,000 बनी इसराइली लड़ाई से मुंह मोड़ चुके थे। ऐसे में सूरत हाल बड़ी नाजुक थी। मुसलमानों की मुख्तसर जमात ने रब ताला के हुजूर गड़गड़ा कर दुआएं करना शुरू कर दी। यहाँ ये वाजे कर दें कि हर नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले और सच्चे पैरोकार मुसलमान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की तमाम उम्मत मुसलमान ही कहलाती हैं और ये मौला करीम का फैसला है। मुसलमानों ने दुआ की कि ए हमारे रब, इस लश्कर के मुकाबले में हमें सब्र व इस्तिकामत और हिम्मत व शुजात का पहाड़ बना दे। लड़ाई हो तो हम मुंह फेर कर भागने वालों में से न हो, बल्कि कदम जमा कर दुश्मन का मुकाबला करें। मौला करीम तू हमें दुश्मन पर गालिब कर देना और फतह नसीब फरमाना। और फिर मौला करीम ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। अल्लाह ताला की मदद नाजिल हो गई। ये मुख्तसर सा लश्कर दुश्मन के लश्कर जरार पर छा गया और उसे थस नस कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किरदार के बारे में इसराइली रिवायात बताती हैं कि जनाब तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि आप जालूत को कत्ल कर दें तो मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा तुम्हें अपनी आधी दौलत और सल्तनत दे दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फलाखन यानी उस दौर का एक हथियार में पत्थर रखा और ताक कर जालूत को निशाना बनाया। ये पत्थर सीधा जालूत को लगा और वो मारा गया। तालूत ने अपना वादा पूरा किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत में शरीक कर लिया। आखिरकार न सिर्फ सारी सल्तनत बल्कि नबूवत भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में आ गई। बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल करने में कामयाबी हासिल कर ली जो अभी तक बनी इसराइल के लिए महज ख्वाब की हैसियत रखते थे। मगर ये मामला सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक रहा।
तालूत की बादशाहत से पहले बैत अल मुकद्दस के अलावा मजदा दौर, हेदा, सौर, जजर, बेतशान और कई दूसरे इलाके उन कौमों के कब्जे में थे जो खुदाए वाहिद की बजाय दीवी देवताओं को अपना माबूद बनाए हुए थे, जबकि मोआबियों, फलीतों, अमोनियों और अदूमियों वगैरह की सल्तनतें भी मौजूद थी जिन्होंने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। उन्हीं कौमों ने अपनी ताकत के बलबूते पर बनी इसराइल के ज़ेर कब्जा कई इलाके उनसे छीन लिए और वो बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हुकूमत उनके बेटे को मिली जो नाअहल साबित हुआ। बनी इसराइल भी आपस में दस्त गिरबान थे। उसी सूरत हाल में मुत्तहिदा की बजाय उन्होंने दो अलहदा रियासतें कायम कर ली। उनमें एक सल्तनत यहूद और दूसरी इसराइल थी। यहूद का दारुल हुकूमत यरूशलेम यानी बैत अल मुकद्दस था और उसके पास जनूबी फलस्तीन और अदूम के इलाके थे। इसराइल का दारुल हुकूमत सामरिया ये मशरकी उर्दन था और शमाली फलस्तीन पर मुश्तमिल थी। इनमें खसूसन इसराइल के बाशिंदों में बुराइयां और मुशरिकाना अकायद उरूज पर थे। ऐसे में अशूरियों ने उन दोनों सल्तनतों को अपने निशाने पर रख लिया। उनके खिलाफ अशूरियों की पंजा आजमाई 9वीं सदी कबल मसीह शुरू हुई। 720 कबल मसीह में उन्होंने इसराइल को ख़त्म किया और यहूद के इलाकों में तबाही व बर्बादी फैलाने के बाद उनसे खैराज वसूल करना शुरू कर दिया। बख्त नसर का मामला आशूरियों के बाद आता है जो बाबल का मुशरिक हुक्मरान था। उससे 587 कबल मसीह में जोरदार हमला करके दूसरी सल्तनत यानी यहूदिया को तस नस कर दिया, हत्ता के हैकल सुलेमानी तक को जमीन बोस कर दिया। यहूदियों का कत्ले आम किया और बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर साथ ले गया, जिनको निसफ सदी बाद साइरस ने आज़ादी दिलाई। साइरस ने 529 कबल मसीह में बाबल को फतह किया था। उसी फतह के नतीजे में यहूदी बाबल की गुलामी से निजात पा सके। कुछ अरसा बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया। ये जिक्र पहले भी आ चुका है कि बख्त नसर ने तौरात का निशाना तक मिटा दिया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा मुरतब किया, यहूदियों को मुशरिकाना अकायद से बाज रखा, जिसके बाद उस कौम में एक बार फिर जान पड़ गई। उससे पहले हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत जजी अलैहिस्सलाम और दीगर की कोशिशों से हैकल की दोबारा तामीर हुई। ये मामला उस वक़्त हुआ जब सल्तनत यहूद के आखिरी बादशाह के पोते को 222 कबल मसीह में दारा अव्वल ने गवर्नर मुकर्रर किया। यहूदियों पर इब्तिला की ये मुकम्मल दास्तान नहीं है। वो हर दौर में मसाइब का शिकार होते रहे, जिसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद थे। इस हवाले से वाक़यात का मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र मौजूद है। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।